स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइट पे। लास्ट के 2 एपिसोड्स में हमने एक हाई लेवल ओवरव्यू लिया हमारे अपने ग्रंथों का, और हमने श्रुति और स्मृति स्क्रिप्चर्स को जानने की करी कोशिश। अब हम कोई एक स्क्रिप्चर्स पिक करना चाहते हैं जिसे हम थोड़ा और गहराई से पढ़ें और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेके चलें। बट उससे पहले बात करते हैं कि क्या हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना भी चाहिए इन हिंदू ग्रंथों को पढ़ने में। लोग सोचते हैं इन ग्रंथों में वो ही पुरानी घिसी पिटी बातें लिखी होंगी, उससे बेटर तो ये होगा कि हम कोई वेस्टर्न बेस्ट सेलर बुक उठाएं सेल्फ हेल्प कैटेगरी में और हम उसको पढ़ लें। हम लोगों के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई वेस्टर्न ऑथर की बुक है जो इंग्लिश में लिखी है तो वो बेस्ट ही होगी। आइए देखते हैं कुछ यूएस बेस्ट सेलर बुक्स को और उनके ऑथर क्या कहते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में। द पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोल ये बोलते हैं, द भगवद गीता वॉज द फर्स्ट स्पिरिचुअल बुक आई एवर रेड, एंड फ्रॉम द फर्स्ट पेज आई वॉज कैप्टिवेटेड बाय इट्स डेप्थ, by its rhythm, by its beauty, and I recognize myself in it. The Alchemist by Paulo Coelho. इस बुक के बारे में कौन नहीं जानता। पोलो कोहेलो भगवद गीता के बारे में ये कहते हैं, The moment I read it, I fell in love with the book. It continues to be my book for all times. When I first discovered it, I wrote the song Gita. It was sung by Raul Seixas. और The Alchemist story का core message is highly inspired by the Bhagavad Gita. आप अगर Google सर्च करो similarities between The Alchemist and श्रीमद् भगवद गीता, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और इसी तरह बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब इन फेमस वेस्टर्न पर्सनालिटीज को देखते हैं जिनको हम अपना हीरो मानते हैं, और इन सभी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन वेरियस फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स। ये सभी हिंदू स्क्रिप्चर्स और फिलॉसफी से इतने हाईली इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, सुनीता विलियम्स, विल स्मिथ। Arjun is in a battle. His family has tripped out. He's a wonderful archer. He's the best archer in the world. And his family trips out and take the kingdom. And they're like, they snatch his wife and they're trying to disrobe his wife. That his family and his friends and all of that for material gain would do this to him. And he's deeply pious. And they prepare an army, the greatest army that's ever been assembled. Except that they don't know that God is driving Arjuna's chariot, right? And even in that, Arjun, he's like, how can me killing all of my family be the right answer, right? I feel like I'm in what Radhanath Swami referred to as a perplexing situation. And I just really related to how the Gita handles those kinds of perplexing situations and recognizing that's what life. और ऐसे बहुत सारे और नाम आपने इनके बारे में सुना हो या ना हो, आपने फेसबुक तो जरूर यूज किया होगा। तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की बात सुनिए। Early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing. And that is something that I've always remembered.
over the last 10 years as we built Facebook. तो फेसबुक और एप्पल जैसी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज के फाउंडर्स भी जब अपनी लाइफ के रफ पैचेस में थे तो उन्होंने भी हिंदू स्क्रिप्चर्स और फिलॉसफीज का रास्ता चुना. सो लेट्स हैव सम फेथ इन आवर ओन स्क्रिप्चर्स एंड एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो हमें करनी ही चाहिए टू गो डीपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. पर अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे स्क्रिप्चर्स, इनमें से कौन सा हमें पिक करना चाहिए टू बिगिन विद. वैसे अगर आप लॉजिकली सोचो तो हमें कोई भी एक वेद पिक कर लेना चाहिए बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. बट वेदास डायरेक्टली पढ़ना और समझना इतना आसान नहीं है. हमको एक फाउंडेशन और बेसलाइन सेट करनी पड़ेगी. तो हमें कोई ऐसा स्क्रिप्चर चाहिए जो रिलेटिवली इजी हो और एज क्लोज एज वेदास हो ताकि ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज के हम बहुत करीब रहें. और कुछ ऐसा भी हो जो प्रैक्टिकली हम रोजमर्रा के जीवन में उसको हम अप्लाई कर सके ताकि हम उससे से ज्यादा कनेक्ट कर पाए. तो एक बुक जो ये सारे क्राइटेरिया को बीट करती है वो है श्रीमद् भागवत गीता. आने वाले एपिसोड्स में हम श्रीमद् भगवत गीता को संक्षेप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. अब संक्षेप में क्यों, प्रिसाइज और कंसाइज वे में ही क्यों? तो आइडिया ये है टू गेट कनेक्टेड विद इट. एक बार वो कनेक्शन जब हमारा बन जाएगा देन वी विल ट्राई टू गो मच डीपर. तो इसी नोट पे एपिसोड 3 को विराम देते हैं और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो. Let's stay connected and let's together explore our spiritual side.